Morning, ma'am. Good morning, class. Fine. Attendance class. Roll number 1, 2, 3. 502 present, ma'am. 503, ma'am. ठीक है बच्चे. Roll number 4, 5, 8. Ma'am, 4-5 present. 8, 9, 10, 11. 9 present. 10 present. Ma'am, 11. ठीक है बच्चे. 16, 18, 19. Ma'am, 19. 16 present, ma'am. 16 present, ma'am. 16, ठीक है. Then 21, 22, 23. 521 present, ma'am. Ma'am, 523 present. ठीक है बच्चे. 25, 27, 31. Ma'am, 525. Ma'am, 527. ठीक है बच्चे. 31. 531 present, ma'am. ठीक है. 32, 33, 35. Ma'am, 532 present. Present, ma'am. 35 भी है. 33 है. Okay. Ma'am, 533 present. 36, 37, Ma'am, 38. 32 present. हो गया बच्चे. 536. 36, 37, 38, 40. 536. 537. ठीक है बच्चे. 40 भी. 540, ma'am, present. ठीक है. 42, 45, 46, 47. 48, 49, 50, 51. 51. Okay. Then 52, 1501, 1502, 1503. Ma'am, 1503 present, ma'am. ठीक. 457. 14, 18, 19. 19. 20, 21, 22. Ma'am, 1520. ठीक है जी. 5, 12. Unsure one last. सुन लो प्रेजेंट कौन है. रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11,
then 16 501. 1 भी कर दिया 11 16 19 21 23 25 27 31 32 33 35 36 37 40 50 51 and then 15 03 15 19 20 बस इसके मैम बाद 546 मैम 522 भी प्रेजेंट है 546 प्रेजेंट मैम 46 है और 22 मने ओके 22 भी मैम 547 present. 47 कर दिया वो कर दिया हाँ जी और मैम 51 51 कर दिया बोला था मैंने 51% और बस ठीक है क्लास कल हम लोग स्टैक्स कर रहे थे पढ़ा किसी ने रिवाइज किया रिवाइज किया किसी ने टुडे आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द स्टैक टॉपिक एंड आई विल बी कंप्लीटिंग इट बाय टुडे तो स्टैक्स की बात करें stack is one of the types of data structures as we have already studied that there are two types of data structure one is the linear and one is the non-linear ठीक है linear के अंदर हमने categorize किया था we categorize linear as arrays queues stacks as well as linked list ठीक है so in this chapter I'll be making you learn about the concept of stacks as well as the concept of queues लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो डेफिनेशन एरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड कर रही थी द सेम डेफिनेशन होल्ड्स फॉर योर स्टैक आल्सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर द डेटा इज अरेंज्ड इन लीनियर सीक्वेंस दे यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर अरेंज्ड इन अ लीनियर मैनर इन अ सीक्वेंशियल मैनर सेम एज इन द केस ऑफ एरेज Array is a linear data structure in which elements are arranged in or stored in consecutive memory location. Same definition holds for array as well as for stacks as well as for queues. जो आप study कर रहे हो, ठीक है? Data items can be traversed in a single run, in a single direction. In linear data structure, elements are accessed or placed in contiguous or इन सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस जो सारी लीनियर की डेफिनेशन थी वो सारी की सारी स्टैक्स पे भी होल्ड करती है लेकिन देयर इज Excuse me, ma'am. Ma'am, 1505 present. बच्चे ठीक है जितनी भी डेफिनेशन आपकी लीनियर के लिए एरेस के लिए होल्ड करती थी वो सारी स्टैक और क्यू के लिए भी होल्ड करेंगी नेक्स्ट है व्हाट इज स्टैक A stack is called also known as LIFO. Stack का another name LIFO कहते हैं हम because it follows the principle of LIFO. The LIFO says that last in first out. The last element to be entered या to be input to the stack is the first one to be displayed, to be taken as output. जितने भी elements होंगे जो हम कल study कर रहे थे if this is the first element this would be the second this would be the third and this would be the fourth element of stack then the last entered is 4 to the stack then this will come out first and the second last is third has been entered to stack then this will come out next तो अगर sequential order में 1 2 3 4 की फॉर्म में आपके एलिमेंट्स एंटर हुए थे to the stack हमने सबसे पहले एंटर करवाया किसको स्टैक में 1 को फिर 2 को फिर 3 को फिर 4 को this is the input to the stack and when I'll be getting out the output from the stack it will be in the reverse order that it will be of the form 4 3 2 1 pehle 4 will come out then 3 will come out then 2 will come out then 1 will come out that's why it is also known as LIFO last in first out ठीक है this means LIFO का मतलब क्या है the last thing we added or pushed is the first thing that we get popped off जो लास्ट में जिसको धक्का मारा होगा उसको पहले बाहर निकाल लेंगे getting a stack is a sequence of elements or items or data elements or data values that are accessible at only one end of the sequence ये restriction आ गई अब
एरेस के केस में क्या होता है, एवरी एलिमेंट इज असेसिबल. आई कैन राइट इफ एन एरे इज ऑफ n एलिमेंट्स, आई कैन, मान लो मेरे को सिर्फ फिफ्थ एलिमेंट चाहिए, तो आई कैन सिंपली गो फॉर द इंडेक्स 4 बिकॉज आई नो द फिफ्थ एलिमेंट इज प्रेजेंट एट वन लोअर इंडेक्स. तो A4 इज डायरेक्टली असेसिबल. कोई भी एलिमेंट देखना है मैंने, मेरे पास 50 एलिमेंट्स की एरे है, 50 में से मैंने 30th एलिमेंट देखना है, मैंने 12 देखना है, मैंने 15 देखना है, मैंने 4th एलिमेंट देखना है, तो कोई भी एलिमेंट इंडिविजुअली असेसिबल है. क्योंकि हमारे पास, हम क्या करते हैं, बेस एड्रेस से कैलकुलेट करते हैं उसका एड्रेस करंट एलिमेंट का, जो हमने लोकेशन वाला फॉर्मूला किया था ना फॉर वन डायमेंशनल एज वेल एज फॉर टू डायमेंशनल. दैट फॉर्मूला कैलकुलेट्स द रैंडम एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एरे. तो एनी एलिमेंट कैन बी असेस्ड एनी टाइम इन केस ऑफ अरेज. बट अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा दे दैट ओनली द last element we enter to the stack, we have the access only to the last element, then that kind of array, special array, is termed as stack. इसलिए हमने लिखा है that only one end of the sequence, if we can have access to only one end, then that data structure is termed as stack. Is that clear till this point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये याद जरूर रखना है कि अगर जिस ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स जाएंगे रिवर्स ऑर्डर में बाहर आएंगे, इसीलिए हम इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं. These are some of the examples of stack. You can take a stack of books. अब वो वाली शरारत नहीं करनी तुम लोगों ने कि हम ये वाली बुक को बाहर निकाल सकते हैं. You have to do it in a specific way. तभी मैंने वो शटल कॉक्स की कल एग्जांपल ली थी. The thing is, if this is the first book to be placed on the floor, then this is the second book, this is the third book, this is the fourth, and this is the fifth book. Then fifth will come out first, then fourth will come out, then third will come out, then second will come out, then first will come out, and the stack will be empty. A stack of plates, a stack of coins, can be anything. Okay, but the problem is that we have access only to the top element of the stack, the last element of stack. अगर इंसर्शन करनी है तो इसके ऊपर ही होगी, अगर डिलीशन करनी है तो ये वाला एलिमेंट ही पहले डिलीट होगा. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैक्स. गेटिंग? अगर नई बुक प्लेस करनी है तो वो इसके पिंक वाली बुक के ऊपर ही प्लेस होगी, और अगर हमने रिमूव करनी है, पॉप ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है, देन द पिंक विल बी रिमूव फर्स्ट, देन द येलो विल कम आउट, देन द ब्लू, देन द ग्रीन, एंड देन द ब्लैक. Operations on stacks that can be performed on stack. दो operations basic हैं जो हम stacks के ऊपर execute करते हैं या perform करते हैं. The two operations are named as push and pop. These are the special name given to two operations that can be performed on stacks. The push, जो मैंने कल आपको बताया था कि धक्का मारना, means when you have to add the element to the top of the stack. Means it is the alias name of the insertion operation. If you need to insert an element to the top of the stack, then that insertion operation is termed as push operation. Pop, निकालना, pop out. ठीक है, pull out. Pop का मतलब pull करना, निकालना. तो the deletion operation is given a special name in terms of stack, that is termed as pop. Q के केस में भी इसको स्पेशल नाम दिया जाएगा. ठीक है, just for arrays the insertion operation is termed as insertion itself, जो कि बेसिक ऑपरेशन का नाम था. हमने ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे ना शुरू में, कि हर डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड वेरियस ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ट्रैवर्सिंग हो गया, इंसर्शन हो गया, आपका डिलीशन हो गया, आपका सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, मर्जिंग हो गया. ठीक है, ये इंसर्शन ऑपरेशन ही स्टैक्स की बात करें, लेकिन यहाँ पे इसका स्पेशल नाम है पुश और इसका पॉप. ठीक है, तो पॉप ने क्या करना है, इट रिमूव्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक. ये देखो, इफ दिस इज अ स्टैक विद द फर्स्ट एंट्री of this one and this is the last entry, when I have to push, then it will be placed on or above the last entry. Last entry के ऊपर वो place करेगा, and if I have to pop, if I have to execute the pop operation or I have to perform the pop operation, then the last entry will come out first and it will go in this manner towards the downward side. We can also say that this is acting as the bottom of the stack.
वैसे ये जनरल नाम नहीं है, बट जस्ट in order to clear the concept, this is, if this is the bottom, then this is termed as top, सबसे ऊपर. So we have access only to the top element of the stack. This bottom is just for the clarity की this is the next end, the next bound of the stack. क्योंकि हम कहते हैं arrays के केस में there should be a bound check, the same is with the case of stack, but the bound check can be done with the help of a variable max stack. That is the upper limit of the stack beyond which the push is not possible. And this is 0 is obviously the lower limit of the stack beyond which the pop is not possible. 0 से beyond 0 तक pop हो सकता है, क्योंकि 0 index का मतलब है top is at 0, तो मतलब element 0 पे है, this is the first entry, तो वो delete हो सकता है. लेकिन अगर 0 से भी नीचे है तो मतलब अभी top किसी को point ही नहीं कर रहा, वो 0 index से भी नीचे है. This is a 0 index, this is a 1, this is a 2, and this is the max stack. तो अगर टॉप इज लेस देन 0 इसका मतलब डिलीशन फिर पॉप नहीं होता. ठीक है. These are the 3 terms that we need to remember in terms of stack. Push used to insert the elements onto the stack, pop used to delete the elements from the stack, and the top that is giving you the current location of data in stack, the last element that is available in the stack. We can give, yeah, we can recommend the term in both ways. Okay, let initially the stack be of size, this is of size 6 with the index 0, 1, 2, 3, 4 and 5. These are the indexes possible, and this is 5 is the max stack. Okay, currently where is top? अगर this is the initial stack मेरे पास है, तो top कहाँ पे इस वक्त? top की वैल्यू क्या होगी? मैम सी. top की वैल्यू बच्चे top top is equal to 2 इंडेक्स होते हैं बच्चे, उसको क्या लेना देना? तुमने एबीसी स्टोर किया है, तुमने लेट इट बी अमन, अभय, अनीता स्टोर किए हैं, उसको कोई लेना देना नहीं, उसके कंटेंट से थोड़ा उसने कंपैरिजंस करने. इट इज जस्ट फोकसेस ऑन द इंडेक्सेस, क्योंकि मैक्स स्टैक में लास्ट इंडेक्स क्या है? 5. अगर वो 5 तक टी की वैल्यू पहुंच जाए, मतलब उस टी 5 के बियॉन्ड नहीं जा सकता. 5 इज द लास्ट इंडेक्स. अगर टी की वैल्यू 6 होती है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 5 इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैक. तो इंडेक्सेस के ऊपर हमारा हमेशा कमांड होती है या कंट्रोल होता है. तभी हम एरे में भी इंडेक्सेस के ऊपर ही कंट्रोल करते हैं. इंसर्शन डिलीशन करनी है तो इंडेक्स को रेफर करते हैं, उसके कंटेंट से हमें कोई लेना देना नहीं. कंटेंट तो तब आते हैं ना जब इंसर्शन करनी, तो उसको कंटेंट डाल दो. लेकिन जितने ऑलरेडी कंटेंट्स है, मैंने क्या करना है? मान लो मैंने 1000 बच्चों का रिकॉर्ड रखा है स्टैक में. अब 1000 बच्चों के रिकॉर्ड से मैं कंपैरिजन करूं या कुछ करने की कोशिश करूं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. इंडेक्सेस 0 to 999, that is a valid thing that everyone knows कि अगर 1000 चीजें हैं तो 0 to 999 प्रेजेंट होंगी लोकेशंस पे. तो हमेशा आपने बात करनी है इंडेक्सेस की. तभी तो मैं लिख रही हूँ 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स. बेसिकली ये काइंड ऑफ एरे ही है. दिस इज एन एरे ऑफ 6 एलिमेंट्स. either you can name the array as A or you can name the array as stack with 6 elements. And the 6 elements have the index. 0 is the first index, first, second, third, fourth and fifth is the last index. तो 6 इंडेक्स पूरे हो गए, 6 एलिमेंट्स पूरे हो गए. ठीक है. तो टॉप इज राइट नाउ एट 2 इंडेक्स. इंडेक्स इज 2 क्योंकि 2 पे एलिमेंट लास्ट प्रेजेंट है. ठीक है. व्हेन आई विल बी एग्जीक्यूटिंग अ पुश ऑपरेशन, I need to tell कि किस चीज को पुश करना है. The D element has to be pushed to the stack. So D will automatically be occupied at 3rd because the first free space available in the stack is at 3 index. अगर 3 इंडेक्स फ्री है पहली, तो 3 पे वो D डाल देगा. तो टॉप अब कहाँ आ गया? 3 पे. फ्री जगह पे जाएगा. नया बच्चा आता तो फ्री सीट पे बैठेगा, खाली जगह पे बैठेगा. The same is the case with elements also. If element has to be inserted, then
it must be inserted at some free space. The same if he tries to do again the push operation with the element E, he has to insert the element E to the stack. Then the E has to be done at 4 index. Then the T will become 4. T always tell you, the top variable always tell you the last index where the element is present in the stack. And if I'll be doing the pop operation, then the T will become again 3, because E will come out first, the last element that is entered. Now T is 3. When again the pop operation is executed, then the T will be holding value 2, showing that there are 3 elements available at index 0 to 2. ठीक है जी, क्लियर है बच्चे? T क्या है, मैक्स स्टैक क्या है? इसीलिए हमने कल ये 2 कंडीशंस की थी कि इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स स्टैक, अगर टॉप के अंदर जो वैल्यू है और जो मैक्स स्टैक के अंदर वैल्यू है दोनों सेम हो जाए, क्योंकि टॉप अगर 5 पे रीच कर जाता है, मैक्स स्टैक तो ऑलरेडी 5 है, तो क्या कहेंगे, बियॉन्ड दिस इंसर्शन पुश नहीं होगा, क्योंकि 5 के बाद कहाँ डालू मैं उसको, और तो जगह ही नहीं है। मैक्स स्टैक का मतलब ये लास्ट लिमिट है, लास्ट इंडेक्स जहाँ पे एलिमेंट जा सकता था, टॉप वहां पे है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट एलिमेंट को डालने के लिए टॉप को 6 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू मैक्स स्टैक रूल। So this condition is checked when we have tries to do the push operation. If top is already at max stack, we can't do the push operation. The same is the case if top is less than 0. We can't do the pop operation because 0 is the first index. If T is here, T is pointing to here, it means there is only one element, A. But if T is less than 0, it means there is no element in stack and the stack is empty, and we can't do the pop operation. किसको pop करेगा जब कुछ है ही नहीं? So these 2 conditions are always checked at the time of insertion and at the time of deletion onto the stacks. Is this point clear? क्योंकि यही algorithms में use होनी बच्ची चीजें। आपको top का assess पता चलना चाहिए, max stack पता चलना चाहिए, ठीक है? देखो यही कल हम कर रहे थे, एल्गोरिथम टू इंसर्ट एन एलिमेंट ऑन टू स्टैक, दैट एल्गोरिथम इज टर्म्ड एज पुश, ठीक है? यू कैन टेक द डेटा स्ट्रक्चर एज ए, यू कैन टेक द डेटा स्ट्रक्चर एज स्टैक। डिफरेंट रिसोर्सेज जिसको आप स्टडी करते हो, दे विल टेक डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, ऑल डिपेंड्स ऑन योर इजीनेस, कैसे आप उसको रिमेंबर करते हो, या जो यूजर फ्रेंडली वेरिएबल्स हम उनको यूज करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमेशा दूसरों के लिए बनते हैं, हम खुद भी यूज करें दूसरे भी यूज करें। स्टैक लेना वेरिएबल स्टैक ले लो, ए लेना ए ले लो, ऑल डिपेंड्स। ए लिया तो द नेम ऑफ द स्टैक हियर इज एक्टिंग एज ए। टॉप इज अ वेरिएबल दैट इज giving you the index of the top element of the stack. Data is a value that is to be inserted to the stack. इस वैल्यू को हमने इंसर्ट करना है, पुश ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, देन मैक्स इज द वैल्यू दैट इज गिविंग यू द लास्ट इंडेक्स ऑफ स्टैक, the last possible index beyond which the index is not available in stack. तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, if top is equal to max, अगर टॉप का इंडेक्स और मैक्स इंडेक्स जो हमारे पास अवेलेबल है दोनों सेम हो जाते हैं तो प्रिंट कर दो स्टैक ओवरफ्लो और एग्जिट कर दो, तो अब इंसर्शन नहीं होगी। इसको इंसर्शन नाम दे दो, पुश दे दो, अगेन आपकी, ठीक है? बट हम रिकमेंड करते हैं पुश ही नाम दो आप। मैक्सिमम रिसोर्सेज में पुश नाम होता है, लेकिन इंसर्शन भी दोगे दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। क्यों? नेम ऑफ द एल्गोरिथम है, दैट डिफाइंस द पर्पस, ऑल इज ऑन द नीड्स ऑफ यूजर, यूजर उसको कैसे रिकमेंड कर रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट मे आइदर विल lead to the exit from the whole algorithm. Because of this step, either the whole algorithm may or may not work. अगर टॉप मैक्स के इक्वल होगा तो दिस एल्गोरिथम होल विल नॉट वर्क, दिस इज ऑफ नो यूज, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है, तो वो कहता पुश नहीं करूंगा मैं। अगर नहीं तो सबसे पहले क्या होगा, अगर ये कंडीशन नहीं है, मैंने एल्स नहीं लगाया, ये जरूरी नहीं कि इसके साथ एल्स हो,
if is itself a checking statement. ठीक है, that is a kind of the branching statement जिसको बोलते हैं चेक करेगा जो कंडीशन को, कंडीशन चेकर है। ठीक है, अगर ये होता है, अगर इफ ट्रू होती है तो वो एग्जिट पे पहुंच के खत्म कर देगा, लेकिन अगर इफ ट्रू नहीं होती ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, तो जरूरी नहीं इसको एल्स में डालो, मैंने सीधे नेक्स्ट स्टेप लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कहा, अब जैसे ये स्टैक है, इनिशियली मेरे पास स्टैक थी एट इंडेक्स 0 1 2, तो टॉप हियर इज, टॉप का इंडेक्स क्या है? मैम 2. Yes, top is here acting as 2, t is equal to 2. Now if I have to insert an element d, मैंने पुश करना d को, d is the data value। ठीक है, अब पुश करने के लिए कहाँ पे उसको पुश करना, खाली जगह पे, पहले तो खाली जगह पे पहुंचो। खाली जगह कौन सी होगी, अगर मैं कहती हूँ टॉप टू 3 पे चला जा, अगर t की वैल्यू मैं अपडेट करती हूँ बाय 3, तो t इक्वल टू 3 मीन्स pointing to this location. Now this is free. If this is free, this can be utilized by the current element जिसको हमने insert करना है। तो सबसे पहले हमारा काम है फ्री लोकेशन पे पहुंचना, तो उसके लिए सबसे पहले मैं करूंगी टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, वो ऑब्वियसली फर्स्ट फ्री लोकेशन होगी, क्योंकि टॉप अगर करंट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, लास्ट एलिमेंट को पिन पॉइंट कर रहा है, तो टॉप प्लस 1 क्या करेगा, फर्स्ट फ्री लोकेशन को ही पिन पॉइंट हमेशा करेगा। तो वो फ्री जगह जरूर होगी, क्योंकि अगर फ्री नहीं होगी तो इसकी वजह से एग्जिट ही कर चुका होगा। ठीक है, तो जैसे फ्री पे टॉप पहुंचा, टी इक्वल टू 3 अपडेट हो गई स्टेप से, थर्ड स्टेप से। अब क्या करना है, क्योंकि टॉप क्या है, टॉप इज एन इंडेक्स, तो ए ऑफ टॉप पे हमने क्या डाल देना है, डेटा, these two dot signs। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ किसी को? Yes, मैम. कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ ये बात? सिर्फ 2 स्टेप्स का काम है, पहले तो फ्री लोकेशन पे पहुंचो। ठीक है, फर्स्ट फ्री लोकेशन कैसे मिलेगी, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। नेक्स्ट उसके बाद वैल्यू इंसर्ट कर दो। इंसर्शन कैसे होती है, राइट टू लेफ्ट, डेटा को कहाँ इंसर्ट करना है, ए ऑफ टॉप में डेटा को इंसर्ट करना है, तो डेटा हैज टू बी रिटन इन राइट हैंड साइड, डेटा हैज टू बी असाइंड टू किस लोकेशन, ए ऑफ टॉप, क्योंकि टॉप इज हियर right now referring to the first free location, this is a free location। बस उसके बाद खत्म, तो ये डी यहाँ पे आ जाएगा। अब टॉप क्या हो गया, यहाँ पे टॉप तो 3 था ही, लेकिन वहां पे वैल्यू भी आ चुकी है बिकॉज ऑफ फोर्थ स्टेप। गॉट इट? Yes, मैम. नेक्स्ट है, सेम हम पॉप के साथ करेंगे। पॉप ऑपरेशन के लिए हमें अगेन क्या चाहिए, द डेटा स्ट्रक्चर दैट इज टर्म्ड एज या नेम्ड एज ए, then the access to top element and then is the data। no max stack variable is required here। क्यों? क्योंकि पॉप का मतलब उसे मैक्स स्टैक पे नहीं, उसे तो निकालने हैं, चाहे मैक्स स्टैक पे हो भी, हमें क्या लेना देना, हम तो डिलीशन में हमारा कंट्रोल सिर्फ टॉप पे है कि टॉप 0 से बियॉन्ड ना चला जाए। ठीक है, तो मैक्स स्टैक की यहाँ पे नीड नहीं है, वो चाहे मैक्स स्टैक पे होगा, पॉप ने डिलीट ही करने हैं, तो मैक्स स्टैक के बियॉन्ड थोड़ा जाने वाला है, वो सिर्फ इंसर्शन के केस में मैक्स स्टैक वेरिएबल चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आई नीड टू चेक इफ टॉप इज लेस देन 0। अगर टॉप इनिशियली स्टार्ट ही नहीं हुआ, दिस इज द 0 इंडेक्स, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ इंडेक्स ऑफ स्टैक। वो कहता है अगर टॉप स्टार्ट ही नहीं हुआ, अगर एक भी एलिमेंट होता तो टॉप 0 होता, अगर टॉप यहाँ पे होता है इसका मतलब स्टैक में सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज एट 0 इंडेक्स, दैट इज वैल्यू विद 5। बट अगर वो कहता है अगर टॉप की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 इंडेक्स से भी कम है, यहाँ t इज इक्वल टू -1 कह लो, 0 से लेस क्या होती है, -1, क्योंकि एक एक इंक्रीमेंट ही होते हैं इंडेक्स, तो 0 से प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, -1। इफ टॉप इज इक्वल टू -1 या टॉप इज लेस देन 0, बोथ कंडीशन होल्ड्स, यू कैन आइदर चेक फॉर टॉप इज इक्वल टू -1 here। If top equal to -1, then print stack underflow here। If top is less than 0, then also you can go for the printing of the statement user friendly, that is stack underflow। No deletion is possible in this case।
अगर डिलीशन पॉसिबल नहीं है, सिंपली क्या करना है, मैं कहती हूँ जैसे एरे के केस में हम कहते हैं नहीं, ए ऑफ n-1 लोकेशन इंडेक्स को छोड़ दो, डिलीशन फ्रॉम लास्ट, सिंपली क्या कर दो, एरे प्रिंट करो an-2 तक, यही करते थे अगर याद करो तो। डिलीशन के लिए वो इंडेक्स को छोड़ दो। तो सिंपली अगर मैं कहती हूँ कि टॉप यहाँ पे 3 को रिकमेंड कर रहा है राइट नाउ, रेफर कर रहा है, अगर टॉप यहाँ पे पहुंच जाए 12 पे, जो कि इसमें पता चल रहा है आपको, तो ये डिलीटेड माना जाएगा। 15 वहां पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी तो देखो चाहिए, खाली लोकेशन दिख रही है, यहाँ पे कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू ही होगी, ठीक है, हर खाली लोकेशन पे गार्बेज है। तो जब टॉप 15 को इस इंडेक्स को रेफर करेगा तो ये 15 भी गार्बेज ही माना जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, ए ऑफ टॉप को सबसे पहले स्टोर कर दो डेटा में। ये स्टेप क्यों किया, ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं भी लिखना ना लिखो, सीधा लिखो टॉप इक्वल टू टॉप -1 डिलीशन हो गई। पर ये स्टेप हम एसेंशियल इसलिए मानते हैं बच्चे, क्योंकि हमेशा हर डिलीटेड चीज को सेव करो। ये डिलीटेड चीज क्या है, ए ऑफ टॉप, कहाँ सेव कर रहे हैं, डेटा में, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको अंडू करना उसको, या उसको रीगेन करना है या रीस्टोर करना है, this data will help you to restore this deleted element. If you haven't stored the deleted element anywhere, then you are not able to restore that value for future use. Is that fine? समझ लगा? Simply top equal to top -1, यहाँ पे top 3 है, top यहाँ पे 2 हो गया तो deleted माना जाएगा इस स्टेप से। पर मैं कहती हूँ उससे पहले स्टोर करो उसको। किसको स्टोर करना, डिलीटेड। डिलीटेड वैल्यू क्या है, ए ऑफ टॉप। ए ऑफ टॉप क्या होगा यहाँ पे 15, टॉप हियर इज 3, टॉप तो 3 है लेकिन ए ऑफ टॉप क्या है 15, तो 15 को पहले डेटा में स्टोर करो। इज द पॉइंट क्लियर टू यू पीपल? Yes, तो ये देखो सबसे पहले उसने डायग्राम में शो किया है, टॉप यहाँ पे 3 है, पॉप किया, टॉप हो गया 2, फिर पॉप किया, टॉप हो गया 1, फिर पॉप किया, टॉप हो गया 0। अगर अब पॉप किया तो टॉप क्या हो जाएगा, -1। इसके बाद अगर पॉप करने की कोशिश करोगे, क्योंकि टॉप ऑलरेडी लेस देन 0 कहेगा, अब नहीं पॉप करूंगा, 0 तक तो पॉप करेगा वो, एम्प्टी स्टैक में पॉप नहीं होगा, अब स्टैक एम्प्टी हो चुकी है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके साथ ये स्टैक्स वाइंड अप होंगे, दिस विल आल्सो टेक 1 लेक्चर, इतना आसान नहीं है। तो आई विल बी डिस्कसिंग यू विद द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, कहाँ काम आती है स्टैक। सबसे पहले रिवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम नाम सुना है? यस मैम। क्या होता है? मैम मतलब जैसे मैम जो नंबर होता है, अगर वो मतलब आगे से भी है तो मतलब पीछे से सेम होना चाहिए हो, जैसे The 1 mirror 51 अगर images हम उसको of, रिवर्स करें। yes, exactly. The mirror images of the two things should be similar. जैसे 1 2 3 2 1, अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ूं या राइट टू लेफ्ट पढ़ूं, तो बोथ आर सेम। दिस स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है। तो पैलिंड्रोम के लिए हम इसको रिवर्स करेंगे, तभी हम चेक करेंगे। अगर 1 2 3 2 1 का रिवर्स करो तो सबसे पहले क्या लिखूंगी, 1, राइट साइड से शुरू करो, 2 3 2 1, दिस स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है। या लेट इट बी, आई विल बी टेकिंग एग्जांपल, कोई और एग्जांपल बोलो, स्ट्रिंग के केस में बोलना कोई एग्जांपल, कोई भी बोल दो। मैम 515। स्ट्रिंग के केस में कोई पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कौन सी होती है? नहीं, ए बी सी डी ई, ए बी सी बी ए ले लेते हैं, लेट दिस इज बी ए स्ट्रिंग। अगर इसका हम रिवर्स करने की कोशिश करें तो सबसे पहले ए लिखूंगी, फिर बी लिखूंगी, फिर सी लिखूंगी, फिर बी लिखूंगी, फिर ए लिखूंगी। तो व्हेन आई विल बी डूइंग द रिवर्स ऑपरेशन, व्हेन आई विल बी कैलकुलेटिंग द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, then only I can compare the original string with the reverse string to check whether it is a palindrome or not. तो ये रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग्स में हेल्पफुल है। स्टैक की मदद से हम किसी भी चीज का रिवर्स इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि द लास्ट इनपुट इज द फर्स्ट आउटपुट। जो ए है, पहले क्या आया था, ए, फिर बी डाला हमने स्टैक में, फिर सी डाला, फिर बी डाला, फिर ए,
तो A will come out first, then B will come out, then C will come out, then B, then A. इसलिए रिवर्स इजीली स्टैक से हो जाता है. Got it? नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है वैलिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग नेस्टेड पेरेंथेसिस. हम बहुत बार देखते हैं पेरेंथेसिस का यूज करते हैं आइदर विद कर्ली ब्रैकेट्स, विद राउंड ब्रैकेट्स, विद स्क्वायर ब्रैकेट्स. प्रोग्राम में भी बहुत बार यूज होते हैं. तो वेदर दे आर हैविंग एन इक्विवेलेंट क्लोजिंग पेरेंथेसिस in the program or not, we can check with the stack. The parenthesis similar से जो हम कहते हैं कोड में होने चाहिए कि किसी की स्टार्टिंग के तो उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, तो that can also be checked with the help of stacks. Okay, the last is a quick sort. एक sorting technique है जो आपने अब स्टडी करनी है इसके बाद, that is quick sort. ये भी stack के ऊपर बेस्ड है. stack की हेल्प से quick sort procedure जो है easily कॉल होता है. These are the 3 applications. चले आगे. ये आपको कई बार क्वेश्चन सीधा भी आता है कि व्हाट इज स्टैक, एक्सप्लेन वेरियस ऑपरेशंस, या व्हाट इज स्टैक, डिस्कस द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक. तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा. एप्लीकेशन पूछिए तो एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. द नेक्स्ट इज द रिवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग. द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन. रिवर्स के लिए क्या करना है? सिंपल एप्लीकेशन क्या है? To reverse a string, the characters of strings are pushed onto stack one by one, and the string is read from left to right. Once all the characters are pushed, they are popped one by one. Since the character last pushed in comes out first, subsequent pop operation results in reversal of string. बस एक बार stack में डालने हैं, वैसे ही pop कर लेने सारे. एक बार सारे push कर दो original stack को या original string को, then pop कर लो पूरी की पूरी string को, तो वो आपको reverse of the string output will get. So this is a simple application of stack. जैसे ये रिवर्स डल है, स्ट्रिंग ओरिजिनल आपका नाम ही रिवर्स है, तो R सबसे पहले जाएगा, फिर E जाएगा, फिर V जाएगा, फिर E, फिर R, फिर S, फिर E. तो it will come out like this: E, S, R, E, V, E, R. So this is the reversal of string. You can use it for checking of palindrome. You can use it for any purpose. जरूरी नहीं palindrome चेक ही करना, कुछ और पर्पस भी हो सकता है. आपने उसको उल्टा करना है, उसकी मिरर इमेज चेक करनी है, मिरर इमेज कैलकुलेट करनी है, और like just you need to push into stack and then you have to pop it till the end of the string is reached. जब तक end नहीं हो जाता तब तक उसको push करो. जब end के reach हो गया, खत्म हो गई string, तो pop कर लो till the top is less than 0. The top is equal to 0. ठीक है. नेक्स्ट है इसकी पेरेंथेसिस को चेक करना. नेस्टेड पेरेंथेसिस के लिए स्टैक्स आर आल्सो यूज्ड. ठीक है. Stacks are used to check whether a given arithmetic expression containing nested parentheses is properly parenthesized. मतलब उसमें properly parentheses लगेगी नहीं. जैसे कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होता है, a plus b multiply by c divide by d then again multiply by e and so on. तो सबके लिए जितनी आपने स्टार्टिंग्स की हैं उतनी एंडिंग्स कॉरेस्पॉन्डिंग हुई हैं कि नहीं. अगर कहीं पे भी मिस मैच है, जैसे इसके साथ इसकी मैचिंग हो गई, इसकी मिस मैच आ गई, तो दिस इज नॉट अलाउड. तो चेक करता है कि उनकी इक्वेशन मैच होनी चाहिए, कि वैलिड है एक्सप्रेशन के नहीं. वैलिडिटी ऑफ द एक्सप्रेशन verifies that for each left parenthesis bracket there is a corresponding closing symbol or properly it is nested. क्लियर है यहाँ तक? क्लास यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. I'll be sharing this PPT with you people, then you can go for checking of this PPT. Tomorrow I'll be, ये हो गया valid और invalid input. Tomorrow I'll be going for detail. कैसे parenthesis check होगा, कैसे expressions evaluate होते हैं. So this is the concept we will be going to study tomorrow. ठीक है. This application is in detail we are going to study tomorrow. कल का lecture मिस मत करना. And by this we will be ending up. 2 टॉपिक्स रह गए, स्टैक खत्म हो जाएगा. एक बार जितना किया उतना एक बार पढ़ लो, और बुक में से जितना मैंने आपको कहा है वो प्लीज पढ़ के रखना.